Hello student, welcome back. Today you are going to learn the next chapter, that is the chemical kinetics. What is chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the rate of reaction and different factors which affect the rate of reaction. यानी रिएक्शन का रेट और उस रिएक्शन के रेट पे डिफरेंट फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और दूसरा बात यह है कि मैकेनिज्म, उस रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसमें कुछ पार्ट डिलीटेड हैं जो मैं जिसके वीडियो में इस साल नहीं बनाऊंगी। तो इस चैप्टर को किस तरह तैयारी करनी है, तो डेफिनेशन, then derivation, then differences and most important are the numericals. इस तरह इस चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है। So let us see first some definitions and the examples so you will understand nicely. The first definition is rate of reaction. जब कोई रिएक्शन हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कम कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। पर यूनिट टाइम का क्या मीनिंग है? पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, ये जो टाइम फैक्टर है पर यूनिट टाइम, उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन है, कन्वर्शन ऑफ ए टू बी, अगर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो रिएक्टेंट है कम होते जाएंगे और बी जो प्रोडक्ट है वो बढ़ते जाएंगे। एंड ओवर टाइम द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेक्स प्लेस एंड इट चेंज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देन एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. What is average rate of chemical reaction? The change in concentration of reactant or product, means this factor remains the same by the time interval. At particular time interval, for example delta t, the change in concentration divided by delta t is called average rate of reaction. And you know very well the unit of concentration is mole per cubic decimeter and divided by time, therefore per second. It is the common unit in which the average rate is explained. For example, change of A to B. अब इसमें क्या होगा, change of A to B में concentration of A कम होते जाएगा और concentration of B बढ़ते जाएगा. Therefore, we are writing average rate of consumption of A. Here, consumption of A means A is used up and therefore negative sign is shown here. Minus delta concentration of A divided by delta T. Why we are writing minus? Because there is consumption of A. जो reactant है उसका जो quantity है वो कम कम होती जाएगी. Then average rate of formation of B. अगर हम formation of B लेते हैं तो क्या होगा, product बढ़ते जाएगा, यानी ओरिजिनल जो क्वांटिटी है उससे तो प्रोडक्ट बढ़ते, शुरू में तो कुछ नहीं रहेगा, धीरे 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 रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे. So plus sign is shown here and change of concentration of B divided by time interval. In this manner, you can write average rate of reaction. What is average rate of reaction? Here minus change of concentration of A divided by delta T equal to plus change of concentration of B divided by delta T. Then next definition is instantaneous rate. What is instantaneous rate? The rate of reaction at specific instant. You have to write only this word, at specific instant is called instantaneous rate. यानी रिएक्शन हो रही है और एक स्पेसिफिक इंस्टेंट, यानी 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, वट एवर यू हैव डिसाइडेड, उस टाइम पे जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देगा उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट इंस्टेंटेनियस रेट. For example, here graph is shown reactant concentration versus time. तो क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, यानी यहाँ दिख रहे हैं मैक्सिमम पीक है इनिशियल when reaction do not start. When reaction starts, the concentration of reactant goes down slowly here, and this is the time. At particular instant
whatever the quantity of reactant here with time you can show in this graph. In the opposite, product concentration versus time, the graph obtained is like this, and here time. अब इसमें क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट इनिशियल कितना है, 0 है, धीरे 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 बढ़ते जाते वो पीक पे दिख रहा है। यानी इन दिस मैनर हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमने इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में देखा है डेफिनेशन। The instantaneous rate dc upon dt is represented by replacing delta by derivative dc upon dt। यानी जहां पे डेल्टा हमने लिखा है इसके पहले, उसके जगह इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या लिखेंगे, dc upon dt। व्हाट इज दी, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा टी की जगह स्मॉल dt, और चेंज इन कंसंट्रेशन dc इन द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट। जो हमने एवरेज रेट में लिखा है डेल्टा, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, d अपॉन dt। यहाँ पे ऐसा सिंबल था, वो सिंबल रेट ऑफ रिएक्शन का हम नहीं लिखेंगे। इन दिस मैनर द एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस टू एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, कन्वर्शन ऑफ a इनटू b। क्या होगा इसमें, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ a एट टाइम t इक्वल टू कंजम्पशन इज द माइनस डी अपॉन डी टी। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सिंबल गलत हो गए तो आंसर कैलकुलेशन में गलत हो जाता है। तो माइनस डी अपॉन डी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, यानी जो फॉर्म हो रहा है ये, तो क्या होगा, प्लस ज्यादा इसका अमाउंट बढ़ती जा रहा है, डी अपॉन डी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। देन रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी कैसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू दिस। दो ही क्वांटिटी है, सिंपल है, यहाँ ऐसे इस तरह से हम लिखेंगे। पर अगर थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का कोई एग्जांपल आता है, likewise here a plus b, two reactors are there, their number of moles are different and it gives product and again different number of moles. So the rate of consumption of b, what is the meaning of this equation, the rate of consumption of b, ये जो b है ये कंज्यूम हो रहा, a भी कंज्यूम हो रहा, और क्या फॉर्म हो रहा है, c। तो ये भी कंज्यूम हो रहा और ये भी हो रहा, पर उसका क्या है, रेशो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए के 3 गुना ये ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। पर मोल ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी आर कंज्यूम, कंजम्पशन ऑफ ए, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस, ये क्या हो रहा है, ट्वाइस, ये सिंगल है तो ये डबल है, ट्वाइस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ये इसका मीनिंग है। अगर यही जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है उसको अगर हम फार्मूले से कंसीडर करते तो क्या लिखेंगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू -3, इसके 3 टाइम्स, -3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। उसी तरह दी फॉर्मेशन, हियर कुछ नहीं यानी क्या प्लस है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल इक्वल टू इसके ट्वाइस है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ सी है इसके डबल है। सो -2 डी अपॉन डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। अब इस तरह से हम लिख सकते हैं। काफी बच्चों को ये समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है, तो उसको हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो दिख रहा है, ये 1 मोल है, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ये 3 मोल है, -1/3 dB अपॉन dt इक्वल टू, ये 2 है इसलिए 1/2 dc अपॉन dt। इस तरह से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, कंजम्पशन ऑफ ए, कंजम्पशन ऑफ बी एंड फॉर्मेशन ऑफ सी, एंड उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसके बारे में हमने वहां पे पुट अप किया है। इन दिस मैनर अगर ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।